morning, students. Today I am going to deliver the last lecture connected to the same chapter, Discovering Tut. The saga continues. Regardless of his fame and the speculation about his fate, Tut, one mummy among many in Egypt. Regardless means without caring of King Tut's fame, and the speculation means अनुमान लगाना, guess लगाना about his luck. Tut was one a mummy among many in Egypt, and there were so many mummies were there, and Tut mummy is one of there that were decided specially for the scanning procedure. How many? Nobody knows. And the Egyptian mummy project, which began an inventory in late 2003, has recorded almost 600 so far and is still counting. No one knows about the mummies. How many mummies are there? That is to be searched there. The Egyptian mummy project. We must mark these words. The main function of Egyptian mummy project was to gain details regarding Egyptian mummy, which began an inventory. Inventory means list of articles. This project was started in late 2003, and it is recording almost 600 so far yet, and the counting is still going on. Actually, this project has decided to take the record connected to Egyptian mummy, and it has recording almost 600 so far yet. The next phase, scanning the mummies with a portable CT machine donated by National Geographic Society and Siemens. The next stage was, the procedure was to scan the mummies. It was decided that the mummies is to be scanned. So many mummies were to be scanned now, but the first chance was given, the first opportunity was given to King Tut's mummy. This procedure was to be done with the help of portable CT machine. Portable means movable. This machine was donated by the National Geographic Society and Siemens. जो इसके मैन्युफैक्चरर थे सिटी मशीन के, इट वॉज डोनेटेड बाय नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी एंड सीमेंस. King Tut is one of the first mummies to be scanned in death as in life, moving regularly ahead of his countrymen. Is very important line of these one. King Tut, when he was merely 9 years old, he was given the opportunity to rule the kingdom. At very early stage, he was given this opportunity. It means he had good image in the front of his countrymen. After his death, so many mummies were to be scanned, but the first opportunity was given to whom? First opportunity was given to King Tut, and in such a way, not only in death, it not only during his life, but after his death, the first opportunity was given to him, and in such a way, it was presented royally in front of his countrymen. That CT machine scanned the mummy head to toe. अब CT मशीन ने जब मम्मी को स्कैन करना शुरू करा तो हेड से लेकर टो तक पूरा स्कैन करा, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस वर प्रेजेंटेड इन क्रॉस सेक्शंस. टट के हेड की बात की जाए, टट्स हेड स्कैनिंग इन 0.62 mm स्लैशेस टू रजिस्टर इट्स कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. इसके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करा गया. टेक ऑन एरी डिटेल, एरी मीन्स वेरी स्ट्रेंज डिटेल विद अ fearful फॉर्मेशन, और फाइनल इमेज को प्रेजेंट करा गया. With Tut's entire body is similarly recorded. A team of specialists and radiologists, many specialists started working on King Tut's mummy. Radiologist team was there. Radiologist is one who does the practice connected to X-rays. Forensic experts was also there, and anatomists were also there. The team of these specialists began to examine the secrets connected to King Tut's life. And the same King Tut, which was protected by earlier the winged goddesses, कि जब किंग टट की डेथ हुई थी तो वहाँ विंग गॉडेसेस को ड्रॉ करा गया था. इट वॉज बिलीव दैट इट वॉज प्रोटेक्टिंग द किंग टट ऑफ गिल्डेड बर्लियर, कि वहाँ जो उसकी बरियल श्राइन थी जो पूरी तरह से गोल्ड से कवर्ड थी, दैट वॉज प्रोटेक्टेड द किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम.
it was taken out for a CT scan procedure. The night of the scan, it means I'm talking about the 5th January 2005. Jai Awas decision was there. The Jai Awas workman, कि जो Jai Awas के जो वर्कमैन थे, जो लेबरर्स थे, दे कैरी टट फ्रॉम द टॉम, कि उन्होंने क्या करा, वो टट को लेकर आए, टॉम से निकाला उन्होंने और कहाँ रखा, दे कैप्ट द टट्स मम्मी इन हिज बॉक्स लाइक पाल बेयरर्स. पाल बेयरर्स कहा जाता है, पाल बेयरर्स आर दोज पर्सन हु कैरी कफिन, जो कफन को जैसे लेकर जाते हैं ना, तो यहाँ पर वो पाल बेयरर्स की तरह उन्होंने क्या करा, उन्होंने उस टॉम को उस बॉक्स को उठाया जिसमें किंग टट की मम्मी थी. दे क्लाइम्ड अ रैप, जो रैम था उन पर चढ़े. दे आल्सो क्रॉस्ड स्टेयर्स, जो स्टेयर्स पर चढ़े. उसके बाद वो कहाँ पर आए, इनटू द स्वेलिंग सैंड आउट, से बाहर जो बहुत तेज़ी से जो एंग्री विंड वाज मूविंग और ब्लोइंग देयर, तो दे केम आउट देयर. उसके बाद वो कहाँ गए, देन रोज ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट. हाइड्रोलिक लिफ्ट इज दैट लिफ्ट विच इज़ रन विद द हेल्प ऑफ अ लिक्विड. उसके बाद वो कहाँ चढ़े, हाइड्रोलिक लिफ्ट पर. उसके बाद वो कहाँ पहुँचे, ट्रेलर पर. ट्रेलर इज कॉल्ड स्पेशली अनपावर्ड व्हीकल विच इज़ पुल्ड बाय अनदर. ये अपनी प्रोसेसर से नहीं चलता है, इट इज़ रन बाय अदर व्हीकल. ट्रेलर में पहुँचे जहाँ पर क्या रखा था, स्कैनर रखा था. मैंने बताया अर्लियर, इट वॉज अ पोर्टेबल मशीन, इट हैज़ बिन टेकन फ्रॉम देयर. इसको वहाँ पर लाया गया था. 20 minutes later what happened, 20 minutes later 2 men came out. 2 men बाहर आए, sprinting for an office near, बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं. sprinting means ran too fast. ऑफिस में नियर बाय जो था वहाँ पर दौड़ते हुए हैं. एंड रिटर्न विद अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फेंस. दे इंस्टेंटली रन इनटू द ऑफिस. दे केम आउट विद अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फेंस. What's the reason behind that? Why they came out in such a way? Actually, what happened there? The $1 million scanner had quit. क्योंकि इतनी जो महंगी मशीन थी, उसने काम करना बंद कर दिया था. It had quit. What's the reason? Because of sand in a cooler fan. क्योंकि इसके कूलर फैन में क्या एंटर हो गया था, सैंड. जैसे वी आर नॉट अफ्रेड टू मे हैंड पम्प स्टॉप वर्किंग बिकॉज ऑफ डैब्रिज, और इलेक्ट्रिक पम्प स्टॉप वर्किंग बिकॉज ऑफ शॉर्ट सर्किट. इसी तरह से यहाँ पर कूलर फैन ने काम करना बंद कर दिया था बिकॉज ऑफ सैंड. अब इतनी महंगी मशीन थी, ऑब्वियसली दे वर हैड अ फियर. नाउ हियर देयर इज वन गार्ड. उसने जोकिंग वे में क्या कहा, नर्वसली वे में, कि इट इज़ हैपन बिकॉज ऑफ द कर्स ऑफ द फैरो. ये शायद इसलिए हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं ये ऐसा लगता है कि जो फैरो का जो कर्स है, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो सिद्ध होने जा रहा. इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्कड वेल इनफ to finish the procedure. Finally, what step was taken? The alternative fans were there. That was brought from the office. That really worked well enough. अब यहाँ पर उन फैंस ने वर्क करा और this procedure finished. Earlier, Jai Awas thought that it was also happening because of the curse, because the outside weather was not favorable, and he thought that he has taken this step because the whole responsibility was over on his shoulders, and he thought if he was not able to gain the things, then all the efforts would go in vain. So he had a fear, and actually he also thought if the $1 million machine would go wasted because of that, so obviously it would not be good, things would not go in his favor. Then he was very worried because of that. After checking that no data had been lost, again the things were rechecked. The good news was there, the data had not lost. कोई भी डाटा नहीं खोया था. Everything was well. The technicians turned it over to the workman. When it was seen that the mummy earlier was scanned, and having scanned that, they concluded that the fan had stopped working. It might be there. It can damage the data. But when they again the thing just was there, the disease was there, nothing had gone wrong, nothing, no data had lost. जब देखा कोई डाटा नहीं खोया था, तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या करा गया कि जो टेक्नीशियंस थे उन्होंने वर्कमैन को उस बॉडी को दे दिया. एंड दीज वर्कमैन हु कैरिड हिम बैक टू हिज टॉम, जो उसे वापस कहाँ ले गए, उसके टॉम तक. लेस देन 3 hours आफ्टर ही वॉज रिलीव्ड.
ज़्यादा समय नहीं लगा, लेस देन 3 hours दिस प्रोसेस वॉज कंटिन्यू एंड ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कफन। इसको कहाँ से कफन से निकाला हुआ लगभग 3 घंटे से भी कम का समय हुआ था। द pharaoh again rested in peace where the funerary priest had led him so long। इस तरह से pharaoh को, इजिप्टियन किंग को, किंग टट को दोबारा उसी बरियल प्लेस पर रख दिया गया जहाँ पर funerary priest उसकी डेथ के दौरान funerary priest ने हमेशा के लिए उसे लंबे समय तक रेस्टिंग पोजीशन पर रख दिया था। बैक इन द ट्रेलर, वापस ट्रेलर में आने के बाद ए टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिश इमेजिंग, एक बहुत चुका देने वाली इमेजेस निकल कर आई आफ्टर की कंप्यूटर स्क्रीन पर। ए ग्रे हैड टुक शेप फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स, कि जो ग्रे हैड था इट वॉज बिकॉज ऑफ हेयर वॉज द हैड वॉज ग्रे। एक पिक्सल्स की स्कैटरिंग फॉर्म नजर आई। पिक्सल में टाइनी एरियाज ऑफ लाइट ऑन द कंप्यूटर कुड बी सीन, कि उसको देखा गया, हर तरफ फैलती हुई नजर आई। एंड द टेक्नीशियन स्पन, टेक्नीशियन ने क्या करा कि उसको स्पन करा, मूव करा और उसको हर डायरेक्शन में टिल्ट करा, मूव करा और एक तरफ झुकाया इन एवरी डायरेक्शन। नेक वर्टेब्री अपीयर्ड, कि जो नेक बोन है वो नज़र आई एज क्लियरली, इतनी साफ नज़र आई जैसे कि एनाटॉमी क्लास में नज़र आती है। इसके अलावा जो दूसरी इमेजेस थी उसमें साफ हाथ हैंड नज़र आए। सेवरल व्यूज़ ऑफ द रिब केज, जो रिब केज जो चेस्ट जो बोन थी वो साफ नज़र आई। साथ साथ द ट्रांजेक्शन ऑफ द स्कल, जो स्कल था वो हेड की पूरी इमेज नज़र आई। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ when Jaya was over that everything is okay, then he got relief because here now earlier he thought कि कहीं ऐसा ना हो कि उस कंडीशन की वजह से, उस फैन के स्टॉपिंग की वजह से कि इसको कोई डाटा लूज नहीं हो गया, पर एवरीथिंग वॉज वेल and the pressure was off. Sitting back in his chair, Jaya was smiled. Back in his chair, he smiled, visibly relieved. बहुत ही रिलीफ दिखाई दे रहा था वो, क्योंकि nothing had gone seriously wrong. He concluded that कि ऐसा लग रहा था कि शायद किंग टट के साथ कुछ सीरियसली रॉन्ग नहीं हुआ था। He also concluded that he was not murdered maybe there. I did not sleep last night because he was very tense. That's why I could not sleep last night. Not even for a second, he said. These wordings has been said by Jai Havas because he was so worried. बहुत ही worried था. And but now I think I will go and sleep. And now he was feeling relaxed. That's why he said that here he would think that he would go and take a sound sleep. Because the miraculous result had been seen that year, when King Tut was again capped in the same resting place, the miraculous thing was observed that year, the wind automatically stopped moving. अब कहीं ना कहीं उसको कर्ज से डर लग रहा था, जब तक कुछ ओके हो गया तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कर्ज ऐसा लगा कि सत्य सिद्ध नहीं हुआ। लेकिन हाँ, when the $1 million machine stopped working, then it assumed that कि कहीं ना कहीं एक जगह पर उधर लगा कि द कर्स वॉज रियली वर्किंग। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर, अब हमने जहाँ पर ट्रेलर में जहाँ मशीन रखी हुई थी हमने उसको छोड़ दिया। डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स, कि मेटल स्टेयर से नीचे उतर कर आए। एंड लेटर इट वॉज देयर, सैंडी ग्राउंड में आए। अब रिजल्ट ये रहा, विंड हैड स्टॉप्ड, विंड बिल्कुल रुक चुकी थी। अर्लियर इट हैड टेकन अ शेप ऑफ वायलेंट। द विंड विंटर एयर लेक, और विंटर एयर बिल्कुल शांत थी, ऐसे शांत थी, इतनी स्टिल थी लाइक डेथ इटसेल्फ। अब यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन डिवाइस यूज़ हुई है, सॉरी एज वेल एज पर्सोनिफिकेशन के साथ साथ यहाँ पर सिमली भी यूज़ करी गई है कि जैसे पर्सन शांत होता है द थिंग शांत होती है। इसी तरह से यहाँ पर सिमली फॉर्म में कि डेथ की, जैसे डेथ में पर्सन बिल्कुल शांत हो जाता है, इन सच ए वे विंटर एयर भी बिल्कुल डेथ की तरह शांत थी। इन द वैली ऑफ डिपार्टेड, कौन सी वैली में? वैली ऑफ द किंग्स। जस्ट अब कि जहाँ पर, वहाँ पर उसी के जस्ट ऊपर जहाँ पर टट की टॉम थी उसकी एंट्रेंस पर क्या डिज़ाइन करा गया था? ओरियन बना हुआ था,
The constellation means the group of stars. The constellation that ancient Egyptians knew as the soul of Osiris. Osiris is also god. और ओरियन को क्या माना जाता है? ऑसिरिस की सोल माना जाता है, उसकी आत्मा माना जाता है. और यहाँ पर ऑसिरिस क्या है? ऑसिरिस मीन्स द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ. इट इज़ अज्यूम्ड दैट स्पेशली इन द इजिप्टियन बिलीव दैट ईयर कि जो ऑसिरिस है वो डेथ के बाद इन लोगों की क्या करती है? टेक केयर करती है, लुक आफ्टर करती है, वॉच करती है, जिससे कि नो वन वुड टेक द ट्रेजर ऑफ दिस पर्सन्स एंड नो बडी डिस्टर्ब फ्रॉम द स्लीप. एंड ये वही गॉड थी जो हु वॉज वॉचिंग ओवर द किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम.